Okay. एक like honest बात बोलना है, like I want an honest answer from everybody. How many of you like have never touched HTML? Hands up. Okay. I'm like मतलब assuming you guys are from क्या बोले biology background or something, इसलिए या मतलब स्कूल में सिखाया होगा. But okay, nice. And others like how in depth HTML have you explored? मतलब कोई मतलब what's your expertise level basically? If you guys I'll just like chat में भी सभी को बोलना है, ठीक है? If you guys have just like done HTML during school, give me a 1 in the chat, ठीक है? Or if you have actually used HTML for some project of your own, give a 2 in the chat. If you have actually like gone through HTML courses or HTML CSS courses or any type of like one shot video in YouTube, give me a 3. And if none of it, तो वही 4, मतलब जो अभी ये है hands up वाले. Okay, 1. I like मतलब मैं सैनिटी चेक ले रहा हूँ कि मेरे को कितना इन डेप्थ जाना है या नहीं जाना है, ठीक है? सो स्पॉइलर या डिस्क्लेमर, we won't go too much in depth. I'm hoping कि सभी का VS Code installed है. Like keep like answering in the chat, and if you have VS Code installed, kindly. Okay. Barsha, was a prerequisite shared with them कि VS Code install करना है या नहीं है? हाँ किया गया था, बट अगर नहीं है तो इट्स फाइन, वील आस्क द मेंटर्स एंड POC टू हेल्प देम. Okay. Okay, so again, hands up if you have installed VS Code. If in वो setup है मस्त. Even if extensions are not there, it's okay. We'll install it like in the session itself. वो issue नहीं है. Okay, so I'm only seeing 7 hands raised. 33 लोगों के पास VS Code है नहीं या क्या? 9 33 लोग में 10 जन. So still not even half of you. 11 12. इतना मतलब सभी धीरे धीरे हाथ क्यों उठा रहे हो? बटन है, क्लिक कर दो बस. 11 12. Okay, I am expecting it not to go higher. तो step 1, अगर तुमको कुछ भी करना है तो you need a ID is where you code. Hopefully you already know about it. वही कि अपन VS Code यूज करते हैं, उसी में सब काम होता है. Even if you join a like company in future, they will use some type of ID and VS Code is the most common ID. ठीक है, वो सब छोड़ो. अभी should we install it during this session या क्या करे वर्षा, ये लोग के लिए जिनका हुआ नहीं इंस्टॉलेशन? एक बार दिखा देते हैं, करा देते हैं. Okay. 10 minutes लगेंगे बस. हाँ. Okay, like this is not part of this session, but I'm sharing how to install. Again, this is not my system और मैं Mac native नहीं हूँ, तो मेरा कुछ कमांड्स या एक्शन स्लो हो सकते हैं, तो नो जजिंग प्लीज. VS Code तो बस कोई भी ब्राउजर में VS Code लिखो एंड जस्ट गो एंड डाउनलोड इट, दैट्स इट. विंडोज के लिए Ubuntu, Mac. ओके. एंड विजुअल स्टूडियो कोड करना. विजुअल स्टूडियो का एक और आता है पर्पल कलर का, वो मत लेना, वो कम्युनिटी का कुछ होता है, ठीक है? I'll just share the link in the chat also. Command V. Okay. Command C. Command C. A. Command V.
Okay, so again, uh, uh, like I saw कि last session में there were folks from second and third year also. तुम लोग भी HTML कभी हाथ नहीं लगा क्या? सिर्फ 2 जन 1 दिए हो. Presenting. Okay, कोई ना. Anybody would like to take a guess कि HTML का full form क्या है? जो बोल पाया उसको प्रीतम के तरफ से चॉकलेट. Anybody wants to unmute just to get the session थोड़ा pace के लिए. If I am audible, मुझे लग रहा है कि मैं थोड़ा audible कम हूँ या कोई ध्यान नहीं दे रहे हो ज़्यादा. Overall, hypertext markup language. Yes, nice. Somik Sinha is right. Somik, you are from which year? And you guys can unmute. Unmute करने का ये है तो सभी के पास. फर्स्ट ईयर दादा. Okay, nice. वही hypertext markup language. So basically, it's the like way we structure our web pages. Each and every web page that exists in the web at the end uses HTML. ठीक है. हम्म, तब तक क्या करें? People are still joining. Hypertext markup language is there. Then next agenda will be CSS, of course. CSS का full form किसी को guess लेना है या Google करके भी बोल सकते हो. Just stay active. Cascading style sheet. Yes, correct. So like you guys know the difference. मतलब ये नहीं कि 5 पॉइंट में बोलना है. Just like the use case of both of them, how they contribute to a web page. कोई बोल पाएगा? Like what does HTML do and what does CSS do for that page? HTML is called the skeletal framework of a web page, and CSS is what gives it like basically उसको सुंदर दिखाने लायक है. करेक्ट. तो वही मतलब HTML इज अपना हड्डी, ठीक है, स्केलेटल कोड. उसके बाद उसको थोड़ा मसल वगैरह लगाना, स्किन वगैरह लगाना, डेट इज CSS. ह्यूमन अगर मतलब एनाटॉमी टर्म्स में बोलो तो, ठीक है. एंड उसके बाद लॉजिक के लिए वी यूज जावास्क्रिप्ट. So JavaScript won't be covered in this session. It will be covered further down. But again, like I'm like reminding all of you, kindly install at least Visual Studio's code, है ना, तो तुम लोग एटलीस्ट लाइक फॉलो अप कर पाओगे. एंड फर्स्ट सेशन में बोला गया था कि दिस वोंट बी अ लाइक हैंड होल्डिंग लाइक सेशन. सब कुछ तुमको पॉइंट बाय पॉइंट ये लाइन पेस्ट करो, वो लाइन पेस्ट करो, ऐसा नहीं होगा. we'll try to like give a short theory about what we are going to do in the first half of the session. Second half will be like little demonstration, and at the end we'll give an assignment or something so that you can also like try in your own ways, right? क्या स्टार्ट करें हम लोग? Let's see. ये सिस्टम में अभी server is there, index system is there.
Barsha, should we start? Yes, we can. Okay. Hello everyone. फिर से hi. I'm Jishnu Barua, currently in fourth year. I'm working as a SRE site reliability engineer for a company known as Infistones, basically a blockchain company. And today we'll be going through like the first session. Today is the first session of Project Refresh, and we'll be like going through HTML and CSS, like the tools we use to develop basic web pages, uh, and like a little bit of history about HTML CSS. We'll go into some what are the HTML tags that we use, why we use them, and the styling options. Okay, यही एजेंडा रहेगा. एंड एट द एंड आई ट्राई टू लाइक इंट्रोड्यूस सम क्रोम डेव टूल्स. मतलब उतना कुछ खास नहीं, वही इंस्पेक्ट एंड ऑल, देन recording your actions, and also that you can replay. So these are the things that will go on, that will go through in this session. Let me share my screen. So this is a backup material. My original material is not with me, but okay. Okay, share. Is my screen visible? Yes. Okay, nice. So can anybody like guess what is this entire thing made of? Like ये कैसे बना है, क्या चीज है this entire page? HTML and CSS only. Yes, correct. So ये HTML CSS ही है, but again this is not made by me. This is made by our like very dear friend Claude. ठीक है? तो I just prompted it with the content and this is the output I got. So like currently अपन क्या कर रहे हैं ना, like everybody knows vibe coding है, exist करता है, agentic coding है, exist करता है. So this was again mentioned during the first session also कि तुम लोग सभी vibe coding करेंगे at some point. If you are not doing, you are like not using a tool that is available to everybody and you are falling behind at the end, है ना? तो इसको एज ए टूल हम लोग यूज करते ही हैं, करना ही पड़ेगा. बट हाउ डू यू यूज दैट टूल एफिशिएंटली इज बाय नोइंग द कॉन्सेप्ट्स प्रॉपर्ली. सो कॉन्सेप्ट्स इन द सेंस, लेट्स स्टार्ट विथ एचटीएमएल फर्स्टली. ठीक है, तो वही अपन स्टोरी ऑफ वेब से स्टार्ट करेंगे. कब स्टार्ट हुआ था, क्यों स्टार्ट हुआ अपना तुम्हारा इंटरनेट. ठीक है, तो अपन 1989 में क्या हुआ था, टिम बर्नर्स-ली एक मेमो दिए थे. ही इज बेसिकली ही वाज वर्किंग एट CERN इज फ्रॉम लाइक क्या बोलते हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूट जैसा है. ठीक है, इट्स अ वेरी ह्यूज रिसर्च इंस्टीट्यूट, वन ऑफ द ओल्डेस्ट, एंड दे जस्ट प्रपोज्ड अ डिस्ट्रीब्यूटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम. एंड उसका बॉस बोला ठीक है, वेग बट एक्साइटिंग. एंड वो जो लाइक इनिशियल प्रपोजल था, दैट बिकेम द वेब दैट वी नो टुडे. ठीक है, एंड 1989 के बाद 1991 में द फर्स्ट वेब पेज वेंट लाइव, and it didn't have any CSS or JavaScript, just pure HTML. like सभी just जाके मतलब तुम्हारा पेजेस खोल पाते थे बस. ठीक है, like there is no such thing as browsers उतना अच्छे से एग्जिस्ट नहीं करता था. देन तुम्हारा 1994 में तुम्हारा W3C फाउंड हुआ, नेटस्केप लॉन्च हुआ. तो ये अभी क्या हुआ, ब्राउजर्स बनने स्टार्ट हो गए. ठीक है, एंड एवरीबडी स्टार्टेड adding their proprietary tags. मतलब tags in the sense, tags are what we use to like in each of the component of an HTML file. ठीक है, अपन p tag यूज करते हैं पैराग्राफ, अपन क्या इमेज टैग यूज करते हैं टू इंसर्ट इमेज, break tag to break a paragraph. So there are multiple tags that we use in a code. I will show them to you. तो अभी फिलहाल we follow a good structure, but इस पॉइंट में क्या हो रहा था, people were trying to make their own tags and that was creating a chaos. So like तुम्हारा 1996 में CSS लॉन्च हुआ एंड तुम्हारा जो styling part है, it was separate from the structure. So like we discussed a little while ago, HTML is the skeletal structural part of a web page, while CSS is styling part, right? तो अभी एक साथ नहीं, सभी structure same भी हो सकता है and people can apply their own styling using CSS. एंड उसके बाद 2000s में HTML5 आ गया. तो उसमें अभी मतलब तुम लाइक
अभी स्टैंडर्ड प्रॉपर टैग्स आ गए, उसमें वीडियो ऑडियो का सपोर्ट आ गया, कैनवस आ गया, कैनवस में तुम अभी गेम्स वगैरह जो देखते हो वो सब कैनवस में ही होता है, राइट। एंड उसके बाद जावास्क्रिप्ट का भी इंजन आ गया, तो पीपल कैन नाउ ऐड एक्चुअल लॉजिक टू देयर पेजेस, लाइक इंस्टेड ऑफ स्टैटिक दे बिकम डायनेमिक पेजेस। सो अभी करंटली अपन 2026 में है, राइट, एंड वी आर स्टिल लर्निंग अबाउट HTML and CSS. Like these are still the foundation. There are multiple frameworks. React है, Vue, Angular, Swell, और भी है, Java based होगा, तुम like you can make like the mobile applications जो बनते हैं, the frameworks that are used for mobile application development, even they use like structures similar to HTML and CSS, ठीक है, like the end code, ठीक है, तुम्हारा जो दिस फ्रेमवर्क्स प्रोड्यूस इज एट द एंड एक्चुअली HTML and CSS. तुम रिएक्ट में कुछ कोड लिखे, इवन इफ यू आर नॉट राइटिंग डायरेक्टली HTML and CSS, you will be writing something using that React framework, ठीक है, तुम उस कोड, उसका सिंटैक्स, उसका स्टाइलिंग फॉलो करोगे, बट द आउटपुट, द डिस्ट्रीब्यूटेड बिल्ड या जो भी बनता है एट द एंड will be HTML and CSS. You can like basically तुम्हारा like एक random अगर वेबसाइट भी खोलोगे, fast.com, okay, so command option I, okay, so see like this page is mostly maybe or maybe not made with like direct HTML CSS, maybe कोई React यूज किया था, Netflix ने बनाया, right, but तुम जब देखोगे इसका like क्या बोले कोड, it is again HTML भैया and yes, क्या बोलो? अब एक ही टैब शेयर कर रहे हैं। ओके, शेयर HTML, ओके, I'll just redo. तो ये एक नॉर्मल वेबसाइट है fast.com, अपन स्पीड चेक करने के लिए यूज करते हैं, राइट। तो तुम्हारा इसको जब इंस्पेक्ट करते हैं हम लोग, यू विल सी लाइक एट द बेस एवरीथिंग इज स्टिल HTML and CSS, ठीक है। तो इतना था, ही था HTML का हिस्ट्री। इधर तक तुम्हारा किसी का भी डाउट है? डाउट होना नहीं चाहिए, बट स्टिल एनीबॉडी इज नॉट क्लियर ऑन व्हाई शुड वी स्टिल स्टडी HTML and CSS, इतना सब कुछ आने के बाद भी? हैंड्स अप इफ एवरीबॉडी इज ओके टिल नाउ, सभी साथ में हो, बोरिंग उतना नहीं लगा, गिव अ थम्स अप प्लीज। ओके, सोमित, श्रीजय, वर्षा, शिवम, प्रतिष्ठा, ओके, some of you are responding, that is great. Next up क्या है? Okay, we'll start with a VS Code का ये stop sharing, I'll share screen, share. Okay, इसमें screen visible again? Yes, it's visible. Okay, so this is the page. Okay, ये जो अभी तुम लोग देख रहे थे, this is the page. What I will do, इसको ऐड करके ना ऐसे नहीं करते ना, एक VS Code खोलते हैं सभी। ओके, सो लाइक अपन एक होम पेज में रहेंगे, राइट। तो कंट्रोल कमांड ऑल्ट टी ना, तुमको बस आफ्टर यू इंस्टॉल VS Code, तुम मतलब अपना स्टार्ट मेनू से या तुम्हारा क्या बोलते हैं इसको, मैक में जो भी है उससे VS Code खोलो। प्लीज वेट, ना स्पेस कमांड स्पेस yes, or is it correct? No, not like this. ये तो ऐसा खुल जा रहा है, but okay, so I am not sure about the command in Mac, but for like Windows तुम क्या कर सकते हो? Can anybody share your screen जो जिसके पास installed है? I'll just guide you, वो proper रहेगा, क्योंकि मेरा Mac में थोड़ा expertise कम है। शिवम, can you help me भाई थोड़ा बहुत? Command plus space I think opens the spotlight search. वहाँ से आप जो भी आप यूज करना चाहते हो, I guess you can search it. हाँ, I tried that, but VS Code नहीं आ रहा, तो I don't want to waste time. शिवम थोड़ा स्क्रीन शेयर कर दे भाई प्लीज। एक सेकंड ठीक है।
ओके Okay, this is Windows. Okay, great. Windows में you just search in the search bar and you get it, right? Installation के बाद ये करना है. नहीं तो if you want to be a little techy, क्या कर सकते हो? Windows R. हाँ, ये भी कर सकते हो. Windows R में you can I don't know कोड करने से आता है कि Ubuntu में आता है, I guess. CMD लिखो. So that opens up the क्या command लिखूं? prompt. CMD. Oh, अच्छा, CMD. So like you go to the folder you want to run and write that's it. Okay, so that's how you open Visual Studio's code in Windows. Linux में भी like तुम terminal खोल सकते हो code space dot मार के. Okay. Next, wait again. I'll start with present now. Fantastic. Share. I am back. तो Visual Studios Code क्या खोलना? Okay, so this is a new VS Code. क्या बोलते हैं इंटरफेस. जब तुम नया खोलोगे तो यही दिखेगा. तो you just open any type of folder. न्यू फाइल भी बना सकते हो but open any folder. तो I just made a PDR बोल के folder. ना एक काम करते हैं, इसमें भी एक नया फोल्डर बना लेते हैं. Example. Okay, open. Okay, so I have a blank folder. I'll just create a file. HTML फाइल का एक्सटेंशन HTML रहता है, तो we'll just write index.html. What is index.html? तुम्हारा by convention, ठीक है, जो फर्स्ट होम फाइल होता है या how to explain? Wait, in C, do you guys know the entry point in a program? Can anybody answer that? Main function. Exactly. तो मेन फंक्शन जैसे होता है कि द लाइक कंपाइलर नोस की मेन फंक्शन रहता है एग्जीक्यूट करने के टाइम मेन से ही स्टार्ट होता है, राइट? तो सिमिलरली व्हेन like running a web page, index.html is the file, like it's the like our browser will search for it. जो भी रेंडर करते हैं वो सर्च करते हैं index.html. ठीक है. Now the thing is you can either like start coding अपन इधर से ऐसे doc tab वगैरह लिख के कर सकते हैं, but in general we don't do that. We use तुम्हारा एक तुम exclamatory mark मारो and enter. So that's how you get a boilerplate. ये सभी को क्लियर हुआ? Command Z. I'm pressing tab, but nothing is happening. Okay. This is not something like तुमको extension भी डाउनलोड करना पड़ेगा. Wait, इसको करते हैं minimize. I'll just do exclamatory mark. ये आ रहा है तुमको amid abbreviation? हाँ. Okay, just return कर दो, मतलब enter कर दो, वो भी चलेगा. कोई exclamation mark and enter, right? Yes. Wait, I'll come back to the session. Okay, so ये पॉइंट तक किसी का प्रॉब्लम है? एक्सक्लेमेशन मार्क एंड एंटर जो फॉलो कर रहे हैं. सीजोई को प्रॉब्लम हुआ है कि नहीं हुआ है? लाइक नो प्रॉब्लम्स. ओके okay, then we return to our VS Code. Let me explain line by line. ये एक ही बार तुम लोग को जानना होता है. It won't even affect you afterwards, but still. First line, कोई एज्यूम कर सकते क्या है ये? मतलब जो लिखा हुआ है पढ़ के क्या समझ आ रहा है? Any answers? पहले तो like language setting to English. ना तो वो तो सेकेंड लाइन है. फर्स्ट लाइन का मतलब क्या? कौन सा लाइन? फर्स्ट लाइन. मेटा कर सेट. नो, दिस डॉक टाइप. हाँ,
ওটা HTML5 ওই ভার্সনটাকে বোঝাচ্ছে। लाइक नो, द थिंग इज ये बोल है कि डॉक्यूमेंट का जो टाइप है वो HTML है, बस सिंपल था, मतलब वही इट्स रिटन राइट, But डॉक टाइप like it's the same thing as you have to explicitly save others as .c .java. Over here you have to say like doc type HTML और वो अपने आप से HTML ले लेता है सेविंग के टाइम. नो लाइक मतलब रिपीटर क्वेश्चन लाइक हम जब like कोई लैंग्वेज का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का फाइल सोर्स कोड सेव करते हैं तो like at that time the file type is explicitly mention it while saving कि ये .c का फाइल है, .java जावा का फाइल है, .py पाइथन का फाइल है. It's something like that. like yes but like this is for the browser कि तुम जो खोल रहे हो, like the doc type of this entire like the code is HTML, that's it. ठीक है, मतलब one HTML is there for like your workspace कि तुम मतलब अपना सिस्टम में क्या फाइल खोल रहे हो, HTML is there right. Now after your browser reads it, the first thing it knows कि अच्छा ये HTML फाइल है, यही इतना ही, और मत जाना है डेप्थ, और डेप्थ में नहीं जाना हम लोग, ठीक है. सेकेंड इज यही लैंग्वेज सेटिंग हो रहा है. उसके बाद कैरेक्टर्स UTF-8 बेसिकली दिस अलाउज फॉर रेंडरिंग ऑफ क्या बोलते इमोजीज एंड ऑल. व्यू पोर्ट ये जो होता है, इफ दिस इज बेसिकली यूज फॉर स्पेसिफाइंग कि तुम मतलब डिवाइसेस कैसा कैसा में यूज करना चाहते हो, ठीक है. विद इक्वल टू डिवाइस विड्थ तुम्हारा बेसिकली बोल रहा है कि जो HTML पेज रेंडर होगा उसका विड्थ तुम डिवाइस का विड्थ फॉलो करो, और स्केल मतलब 1.0 बेसिकली फुल स्क्रीन ही ले लो आराम से. टाइटल डॉक्यूमेंट, टाइटल इज बेसिकली तुम्हारा जो टैब के ऊपर आता है. तो सपोज दिस मीटिंग पेज, द टाइटल इज मीट डैश प्रोजेक्ट डेव रश, ठीक है. सो बेसिकली यू कैन आल्सो सेट इट डायनेमिकली. और इसका टाइटल क्या होगा गेस कर सकते हो, इस पेज का टाइटल? My page. No. The title is basically what you see in the tab. HTML and CSS 1 hour, that one I guess. Exactly. तो इसमें तुमको जो भी दिखाना है, right? You just mention in the title. That's it. So suppose ये है इसको let's try rendering this, right? Command S, go live. Okay, so see document आ गया, right? So I can just change that also. Document 1 or the save, and if I open Brave again, document 1. Got it? भैया there is a doubt in the box. Okay. Line number 4. What is line number 4? Line number 4 is तुम basically उसका rendering कैसे करना चाहते हो अपना पेज का. और line number 4, sorry. Line number 4 is character set UTF-8, ठीक है. character set UTF-8 दिस बेसिकली तुम मतलब पेज में कैसे कैसे कैरेक्टर्स रेंडर करना चाहते हो. UTF-8 अलाउज फॉर द रेंडरिंग ऑफ इमोजीज. मतलब ये मतलब UTF-8 एडिशनली अलाउज द रेंडरिंग ऑफ इमोजीज. और क्या बोलो इन डेप्थ, वेट लेट मी सी मेरे मटेरियल में कुछ है तो CSS भाई इमोजी सपोर्ट है, नहीं तो ये नहीं मेंशन करेगा तो योर इमोजीज विल कम एस तुम्हारा जो हैश वगैरह आता है ना, तुम्हारा एस की वैल्यू आ जाएगा, ठीक है. तो दिस अलाउज द रेंडरिंग ऑफ तुम्हारा इमोजीज. होपफुली दैट इज क्लियर. अनीता जाना. ओके, ये हुआ. नेक्स्ट टाइटल डॉक्यूमेंट ये हो गया. नेक्स्ट इफ यू सी ये पूरा ये अपन कोलैप्स किया, ठीक है. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ HTML. फर्स्टली यू मेंशन द डॉक टाइप, देन यू
have HTML. HTML का opening bracket जिसमें you have mentioned language English, ठीक है, and HTML का closing bracket. Then inside HTML there are two parts. One is head, one is body. Head में basically you do like preloads and all. तुम्हारा title क्या रहेगा, right? तुम्हारा जो चीजें दिखते नहीं है, basically linking वगैरह, style sheet linking वगैरह होगा. I'll come to that. And in body what you see is तुम्हारा जो whatever will be rendered in the page. Now ये साइड में जाता है, हाँ जाता तो है, अच्छा ये है क्या ना, ये क्यों नहीं लग रहा, फंस गया। Anybody can help me with Mac? Okay. Okay, nice. Then इधर अपन ब्रेव खोल लेते हैं। तो दिस इज आवर आउटपुट। अपन यूज कर रहे हैं लाइव सर्वर। लाइव सर्वर हाउ टू इंस्टॉल, गो टू एक्सटेंशंस। I guess this is already mentioned in the PDR ka website, but extensions may go and install this. Okay, so once you install this and this, wait, okay, I am back, sorry for that. Now ये लाइव सर्वर एक्सटेंशन है। इसका फंक्शन क्या है कि तुम जो भी अपना इंडेक्स मतलब वेब पेज में लिख रहे हो वो हम लोग लाइव इधर देख पाएंगे। फॉर एग्जांपल इफ आई टाइप this, will this come? I don't think so. हाँ ठीक है, टैग यूज करना। तो we'll start with the first tag of the day, that is p tag tab, and word, why is it not hot loading? Oh, okay, command s. So हाँ, लाइव सर्वर हम लोग यूज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग को अपना आउटपुट देखना है, राइट? हम लोग अपना HTML का कोड लिख रहे हैं, वी वांट टू सी द आउटपुट। सो लाइक एनीथिंग आई डू, suppose I write random things and just save it. Once I save it, this will automatically reload. So this is one of the first extensions that I want you to install if you download Visual Studio Code. Okay, so like let's start with tags. क्या होता है tags? Tags are basically what allows you to add elements to a page. ठीक है, तुम्हारा फर्स्ट टैग वी नो इज p tag. p tag का एग्जाम मतलब है पैराग्राफ टैग। तुम इसके अंदर जो भी लिखोगे वो एज ए पैराग्राफ वो सेट रेंडर हो जाएगा once you save it. Now some other tags are wait, div tag. Okay, let's not do that now. हाँ, header tag. Header tag is basically तुम सपोज अपने पेज में हेडर डालना चाहते हो, h1 tab, control save and see document. So this is h1. Now you can convert this to h2 and save. So ये छोटा बन जाता है। Similarly you can like ऐसे header 1, header 2, header you can go up till 6, right? Control save. Okay, so अगर तुम लोग कभी डॉक्यूमेंट फॉर्मेट किए हो इवन इन वर्ड, यू नो देयर आर हेडर्स, एंड सिमिलरली HTML में भी हम लोग हेडर्स यूज करके अपना फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। Okay, save, that is there. Some other tags, let's see,
section, article, span. I guess image tag. क्या देखना चाहते हो, कैसा टैग देखना चाहते हो? Any like request? How to like separate pages? Separate pages. So for that, how to? There are multiple ways. Firstly, तुम जावास्क्रिप्ट यूज करके कंडीशनल रेंडरिंग कर सकते हो. नहीं तो like do you want to do a single page HTML कोड या मल्टी पेजेस करना चाहते हो? ऑफ कोर्स, राइट. तो तुम अभी क्या कर सकते हो इधर, आई डोंट नो ये होगा कि नहीं, था मेरे को भी देखना पड़ेगा. बट सपोज आई डू पेज 2.html, ठीक है, एंड आई डू सिमिलर तुम्हारा ये टैब, एंड दिस इज document 2, and I save it, and I use maybe each reference था ना, each ref. हाँ, तो href is basically used for giving a ref. हाँ, तुम a टैग यूज करते हैं, हम लोग एंकर टैग बोलते हैं इसको. एंकर टैग इज बेसिकली यूज फॉर लिंकिंग लाइक डिफरेंट पेजेस. नाउ ये पेज टू में कुछ एडिशनल भी दे, डॉक्यूमेंट टू है, बॉडी में भी कुछ लिख देते हैं कि दिस इज सेकेंड डॉक्यूमेंट. वाओ, सजेशंस आर नाइस. कंट्रोल सेव. सो एंकर टैग होता है, एंकर टैग वाई दे आर यूज फॉर बेसिकली लिंकिंग टू अदर पेजेस. तो अपन एक दूसरा पेज बनाए एंड वी गिव दी हम लोग href में उसका लोकेशन दे दिया, फाइल नेम दे दिया, राइट, page2.html. तुमको पूरा .html लिखना पड़ेगा, सिर्फ page2 लिखने से नहीं होगा. नाउ दिस इज सेफ, लेट्स सी इफ इट्स वर्किंग. सो इन document 1 I see an option, go to document 2, and this is the second document. ये तो did that answer your question, रीता आजा? तुम एंकर टैग यूज करके मल्टीपल पेजेस बना के ऐसे ऐसे स्विच कर सकते हो. सपोज नाउ इन पेज 2 तुमको सपोज बैक जाना है, राइट, तो तुम ओह नाइस, अगेन सजेशन इज गुड, एंकर टैब देके तुम इसको गो बैक टू डॉक्यूमेंट 1 कर सकते हो. तो दिस इज लाइक हाउ प्रिमिटिव पेजेस यूज नेविगेशन. एंड ऑल्सो तुम चाहो तो सपोज देयर इज क्या बोले, मल्टीपल सेक्शंस इन अ डॉक्यूमेंट, राइट. अपन क्या कर सकते हैं, अभी डिव लेते हैं, ठीक है. व्हाट इज डिव? डिव का फुल फॉर्म होता है डिवीजन. क्या है ये, गलत चीजें कहा है यार. टैब div. ओके, सो दिस इज कुछ एक div, और इसको हम लोग एक क्या बोलते हैं, आईडी दे देते हैं कि आईडी इज div1. कंट्रोल सेव. एंड इसमें नहीं होगा, रुको थोड़ा और कुछ डालना पड़ेगा. So one more nice thing to have is lorem ipsum. Yes, कोई ना कोई तुमने वेबसाइट में देखा ही होगा कि there is like random content that you cannot actually understand. So lorem लिखने से in a place, I will show that again. Inside a p tag or any type of tag that can take a d tag, like तुम्हारा text data text for rendering. तुम you can wait, why is caps lock on? P small p. Okay, so you can just type in lorem and just enter. तुमको random content मिल जाएगा. And if you save it, so see, random content I did not write. Now what I can do is duplicate it
command C, shift enter, command V, and give and suppose I give a go back to document ना ये नहीं था इंटर पेज कैसे करते थे लेट्स सी क्या मेरे पास कंटेंट में है स्ट्रॉन्ग इमेज ना सिमेंटिक एंकर टैग diff I'll have to look it up थोड़ा भूल जा रहा हूँ मैं भी tapped हाँ meanwhile wait I'll like try to remember div के अंदर कैसे अपन नेविगेट कर सकते हैं बट href के अंदर ना तुम लोग एक और चीज भी कर सकते हो कि तुम लोग हाँ you can actually like give links to other pages also suppose तुम अपना वेबसाइट होस्ट करके रखे हो और तुम उसको उसका लिंक देना चाहते हो तो यू कैन डू दैट आल्सो तो इफ आई क्लिक हियर गूगल खुल जाएगा ठीक है ये सो दैट्स इट अदर टैग्स दैट वी कैन एक्सप्लोर p tag is done header tag div का मेन यूज तो वही स्टाइलिंग के टाइम आएगा आर्टिकल इमेज टैग इज देयर लेट्स सी image tag suppose you want to enter image so just use image क्या होता है self closing tag होता है so there are like different types of tags okay तुम्हारा anatomy of a tag क्या होता है तुम्हारा opening closing self closing like opening and closing basically बोलता हूँ मैं क्या होता है h1 and h/h1 this is the opening part of a h1 tag this is the closing part of a h1 tag right और सेल्फ क्लोजिंग कैसा होता है सेल्फ क्लोजिंग इज दिस इमेज का टैग सी देयर इज ओनली वन लाइक टैग वी आर यूजिंग नॉट इमेज का कोई क्लोजिंग टैग नहीं रहता दैट्स व्हाई इट्स सेल्फ क्लोजिंग ओके नाउ टाइप्स ऑफ तुम्हारा एलिमेंट्स ब्लॉक एलिमेंट्स डिव एलिमेंट्स देखो कि ये अपन एक ब्लॉक बना है इसके अंदर हम चीजें रख सकते हैं पैराग्राफ अगेन ब्लॉक एलिमेंट चीजें रख सकते हैं हेडर एक ब्लॉक है चीजें रख सकते हैं सेक्शन आर्टिकल सिमिलर देन इनलाइन एलिमेंट तुम्हारा दिस इज नॉट समथिंग जिसमें हम लोग कंटेंट रखते हैं दिस इज बेसिकली यूज्ड फॉर रेफरिंग टू सम अदर कंटेंट और लाइक नेविगेटिंग टू सम अदर कंटेंट राइट तो इसलिए इसको इनलाइन कंपोनेंट बोलते हैं एंड सिमेंटिक HTML तो इसका बेसिकली यूज कहाँ होता है तुम्हारा हेडर नेव मेन फुटर हेडर मतलब सपोज तुम कोई भी एक वेबसाइट में जाओ तुम्हारा हाँ यूट्यूब यस दैट वर्क्स ना ठीक है इधर भी देख सकते हो दिस इज द हेडर राइट इसमें चीजें हैं तुम इसमें नेविगेट कर पा रहे हो तो दिस विल कम अंडर तुम्हारा सिमेंटिक सिमिलरली इफ यू गो टू द एंड ऑफ द पेज देयर इज अ फुटर तो ये वाला जो पार्ट है दैट विल कम अंडर सिमेंटिक देन मीन नेविगेशन के लिए भी अपन सिमेंटिक यूज करते हैं दैट्स इट एंड उसके बाद डॉम आता है व्हाट इज डॉम डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल ये जो तुम कोड देख रहे हो ठीक है तो अपन क्या कर रहे हैं एक डॉक्यूमेंट बना रहे हैं जो डॉक टाइप HTML फॉर्म ये स्पेसिफाई करके किए एंड उसके बाद हम लोग एक एक तुम्हारा ब्लॉक बना रहे हैं ऑल दिस ब्लॉक्स is how your browser sees your code. All of this becomes an object, ठीक है तो वही कि डॉक्यूमेंट के अंदर हम लोग ऐसे ब्लॉक्स यूज कर रहे हैं एंड दैट इज एक्चुअली नोन एज डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल इतना ही है तो अभी क्या होता है सपोज तुम्हारा ब्राउजर को बॉडी का कुछ बॉडी के अंदर हेडर को ये करना है तो इट कैन जस्ट गो टू द बॉडी टैग देन h1 टैग उसके अंदर जो भी मटेरियल है उसको एज ए हेडर डिस्प्ले कर देगा तो ऐसे लाइक तुम्हारा ब्राउजर तुम्हारा कोड को समझ के रेंडर कर पाते हैं ठीक है डॉम का फुल फॉर्म समझ आया डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल व्हाई इज इट डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल डॉक्यूमेंट के अंदर we just like use all these blocks which are actually objects and that is how the
browser perceives our code and renders it. That's why it's document object model. Browser parses so basically HTML, ठीक है, and renders. And उसके बाद इधर तक कुछ भी डाउट आया? Of course आया. If you want, ask please. HTML का CSS next part है, but HTML का I want to do more, but क्या करूँ? अच्छा, ये वाला we didn't see ना, ये image का rendering, placeholder image, because this is not coming, I guess. Is this link even valid? Command C, Command V, enter. Okay, I don't think this is a valid image. तो हम लोग एक इमेज सर्च करके images copy image address plus, let's see, पर देख लेते चेक करके क्या आता है कि नहीं. Okay, this is coming, so we'll use this link. And we'll save it first. Save. Okay, ये we made a random, ठीक है. तो ऐसे कर इमेज टैग यूज करके तुम इमेजेस रेंडर कर सकते हो. There will be tag for audio also, most probably. Like tags के लिए what you can do, I basically go to W3 schools, HTML tags. So like to know more about all of the tags, just go to HTML like W3 school and तुमको मिले. हाँ, see there is a video tag also. Video tag में तुम बस वीडियो में अपना MP4 का ये पास कर दो. In the same way, we have for audio too. Audio, then हाँ. src equal then audio link. Yes, all of this basically जो भी तुम्हारा like क्या बोलते हैं फाइल रिलेटेड होता है. I'll just explain the structure of the file related text, image, audio, video. So in general तुम्हारा इधर देखो कि तुम देख रहे हो कि we are specifying the width of the video, height of the video. Image के लिए भी we can do the same. Alternate placeholder source. रुको, इसके अंदर डायरेक्ट स्टाइलिंग आता है. I need to see with okay, so that is there. Width and height 150. So we can basically specify that for our मतलब तुम कुछ भी क्या बोलते हैं मीडिया फाइल्स यूज करोगे, image, audio, video, there will be a tag available in HTML where you can specify like its dimensions. It's तुम audio यूज करेंगे तो mostly maybe तुम volume वगैरह भी देख सकते हो. तो सेव करके तुम देखो एक छोटा बन गया. तो 120. This is not this me come under styling. तो images के लिए तुम ये specify कर सकते हो. Same with video also, right? And उसके बाद तुमको source देना पड़ता है. What is this SRC based मतलब source मतलब कहाँ से मैं fetch करूँ. वेबसाइट पूछ रहा है कि from where do I get this video, तो तुम बस लिंक दे दो. लिंक कैसे तुम देख सकते हो कि इट्स legit or not. Make sure कि वो तुम जब ब्राउजर में डायरेक्ट खोलो without any paywalls, without any I accept, I want to see this image, डायरेक्ट इमेज खुल रहा है. ठीक है, तो उसके लिए जस्ट कोई भी इमेज तुम जब भी कॉपी करो तो उसका जो कॉपी कर रहे हो तो कॉपी इमेज एड्रेस या कॉपी इमेज लिंक, ठीक है, वो पेस्ट करना. सेम विद वीडियो आल्सो यू कैन बेसिकली डू दी सेम. वीडियो इज इधर जो दिख रहा है इट्स नॉट अ सेल्फ क्लोजिंग टैग. इसमें ओपनिंग और क्लोजिंग है और तुम बस इसमें सोर्स दे रहे हो. Like they are providing multiple formats for the same video, like depending on the browser वो अच्छे से रेंडर हो जाएगा. और क्या क्या टैग्स है? let me see. तो एंकर टैग देख लिया हम लोग, राइट? मस्त. href url diff टैग भी देख लिए. तो diff बेसिकली वही कि तुम अलग से सेगमेंटेशन करना चाहते हो अपना
इसका मतलब वेबसाइट के अंदर यू कैन यूज div block. We'll like go through it again while like थोड़ा हम लोग just CSS एक्सप्लोर करेंगे, टाइम है तो. Oh, we're already like nearing 8. Okay. Tag. Well, let me like quickly go through CSS then. अभी मैं थोड़ा CSS देख लेता हूँ लास्ट में. We'll extend for like around half an hour. हम लोग थोड़ा कुछ इंटरेस्टिंग करने का कोशिश करेंगे. Till then, like again, before moving forward to CSS, I want to know कि तुम लोग का टैग्स का थोड़ा बहुत समझ आया. टैग्स इज बेसिकली तुमको जो भी कंटेंट डालना है अपने वेबसाइट में उसके लिए टैग रहेगा ही. और तुम उसको कुछ फॉर्मेट करना चाहते हो, ब्रेक करना चाहते हो. सपोज वन एग्जांपल अगेन विल बी, इधर तुम अगर br टैग मार दो और br will be self closing में control z and to check control save document and see ये ब्रेक लाइन ट्रैक है तो तुम्हारे इधर ब्रेक हो गया कंज्यूम जो भी है ये वर्ड के बाद. ठीक है, तो लाइक यू कैन बेसिकली प्ले अराउंड विद ऑल द टैग्स एंड ट्राई पुटिंग इन डिफरेंट कंटेंट्स. तो यही है HTML का, यही है बेसिकली कॉन्सेप्ट. और लाइक इट बिकम्स मोर कॉम्प्लेक्स, या क्या बोलूँ, कॉम्प्लेक्स नहीं, मोस्टली थोड़ा बहुत थोड़ा ब्रांच आउट हो जाता है या थोड़ा इन डेप्थ मल्टीपल लेयर्स आते हैं व्हेन वी एक्चुअली ऐड CSS एंड जावास्क्रिप्ट. CSS में देयर आर लाइक टूल्स व्हिच विल गो थ्रू, होपफुली वी कैन कंप्लीट, एंड दैट्स इट अबाउट HTML. किसी को HTML के रिगार्डिंग कुछ डाउट है? लाइक आई ट्राई टू कीप इट सिंपल. मेरे को पता है थोड़ा इधर उधर लैग हुआ है, बट हाँ बोलो, HTML के रिगार्डिंग किसी को कुछ पूछना है, जानना है, या इनफ अबाउट HTML? थोड़ा बोरिंग लग रहा है, CSS में चलो. Hello, everybody awake? Hands up if you are not awake, and +1 in the chat if you are awake. Cyan is not awake. Nice. Okay. बाकी सब भी थोड़ा हाई हेलो बोल लो. यू कैन अनम्यूट गाइस. तो अभी तक का मतलब HTML के बारे में, मतलब see, like HTML is something that we don't use day to day, but वही concepts are always helpful. तुम again like जॉब में भी जाओगे, HTML कोई पूछेगा नहीं इंटरव्यू में, बोलो HTML का P टैग क्या करता है, HTML कैसे स्टार्टिंग होता है. Like in general they won't ask you, but the thing is while you are working with stuff ना, तुमको जब एक चीज का बेसिक नॉलेज रहता है, कॉन्सेप्ट रहता है कि like you are confident कि this, like you are not lacking some knowledge, right? You know 100%, yeah, you know most of the concept that is required for HTML. इतना ही जानना होता है. तुम अभी if you are अभी तुम कभी इंटरव्यू में जाओगे, you won't have the fear कि मेरे को मे भी HTML का सब कुछ नहीं पता, मेरे को कुछ रैंडम क्वेश्चन पूछ देंगे, I may not be able to answer. Be confident कि इतना ही है HTML is not something very complex, hard, and we won't be even using it. We just need to know it for the sake of knowing it and to help build up our knowledge for learning other frameworks. Okay, ठीक है. I got a good amount of +1s, +4 also. Thank you. उसके बाद अभी अपन आते हैं कि यार भोजरी कुछ बोलोगे भाई? तुम तो आई गेस वेब डेव जो कर रहे हैं, दिस विल बी वेरी बेसिक सेशन, मतलब रिवीजन सेशन जैसा समझ लो. Yeah, actually I just wanted to say that HTML में बहुत सारे ऐसे भी कुछ चीजें होते थे, मतलब होते हैं कि उस सेम चीज को हम और एक तरीके से भी हम कर सकते हैं. Exactly. So they are divided in such a way so that we don't really need to remember all those things, but just we need to understand the basic fundamentals so that we can implement it by remembering some few things only. Exactly. So like style में बहुत सारे flex column, flex बहुत सारे होते हैं, पर अगर वैसे हमको पता होगा तो हम डायरेक्शन के जरिए भी बहुत सारे हम काम कर सकते हैं. उतना याद रखने की कोई जरूरत ही नहीं. That's the only thing I just wanted to tell. Yes, correct. Thanks for adding to whatever I spoke. So basically वही कि तुम लोग अभी at some point, even if you get to into a company जो बोले नहीं we want a very basic landing page and we want to do this only, वो लोग अपना formatting, अपना styling दे देंगे, and you won't be like using your own head. You will follow that formatting, but to follow that formatting you will know, you need the knowledge that you gain today.
ठीक है, इतने कॉन्सेप्ट। लेट्स मूव ऑन टू CSS। CSS से मुझे भी डर लगता है, क्यों? क्योंकि मैं भी प्रैक्टिस नहीं करता, मैं फ्रंट एंड डेवलपर नहीं हूँ। बट लेट्स स्टार्ट अगेन। लाइक CSS इज कास्केडिंग स्टाइल शीट। ये कब इंट्रोड्यूस हुआ था हिस्ट्री के हिसाब से? इधर लाइक 1996 में। क्यों? क्योंकि ये पेजेस जो है इतना लाइक बेजान लग रहा है ना, बेजान लग रहा है ना। ये क्या है, डॉक्यूमेंट वन, क्या लिंक्स है, इमेजेस भी देख के मतलब कुछ मजा नहीं आ रहा है। तो ये मजा लाने के लिए ही CSS ऐड कर किए गए। और 3 ways टू स्टाइल, इनलाइन, उसके बाद तुम्हारा स्टाइल टैग और एक स्टाइल शीट। वेट, इनलाइन मतलब क्या होता है? दिस इज इनलाइन स्टाइलिंग, ठीक है, जो हम लोग कर रहे हैं कि हम लोग एक टैग के अंदर ही हम लोग बस दिस इज द लाइक फर्स्ट एग्जांपल कि हम लोग एक टैग के अंदर उसका विड्थ और हाइट स्पेसिफाई करते हैं। दिस इज इनलाइन, बट दिस इज बैड फॉर स्केल। बैड फॉर स्केल क्यों? बिकॉज रिडंडेंसी इंट्रोड्यूस हो सकता है। like this again, like bad for scale is very क्या बोल, subjective. तुम like it may differ for like some use cases also, क्योंकि inline करने से तुम्हारा again KOL कम हो जाता है कुछ कुछ जगह पे, but okay. नेक्स्ट इज वेट, इनलाइन का हो गया। स्टाइल, स्टाइल टैग कैसे यूज करते हैं? व्हाट यू डू इज बेसिकली स्टाइल, टैब, क्या मैंने कहीं गलत लगा दिया? आई गेस दिस शुड बी आउटसाइड बॉडी, आई डोंट नो, आई हैव टू एंटर कमांड V, command Z, 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 and enter shift style tab, and is it okay? Not okay. क्यों? क्या ये बॉडी के अंदर होना चाहिए कि बाहर होना चाहिए? I have to go for W3 school। क्या करना है अपने को? बस HTML में जाके इधर है, नहीं है, style tag should be in body, I guess, yes. भैया please don't mind, why don't we just separately make a different Style, page for CSS styling and we just link style it? sheet, हाँ वही, that is the third option, right? वो already mentioned है। तुम्हारा ये सी एक्सटर्नल स्टाइल शीट बेस्ट होता है, बट स्टिल लाइक आई वांटेड टू शो कि स्टाइल टैग भी यूज होता है। तो अच्छा, स्टाइल 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 टाइप CSS डिफ के अंदर, आई डोंट नो, मे बी डिफ के अंदर, आई दिस इज नॉट समथिंग इवन आई यूज। तो डिफ वन बॉडी के अंदर, अच्छा HTML के अंदर ही होना चाहिए, सिर्फ बॉडी के बाहर। हाँ वो टैग क्लोज नहीं हुआ, ठीक है, गॉट इट। सो सी अपन अभी क्या किया, एक स्टाइल बोल के एक टैग यूज किया जिसके अंदर हम लोग जो जो अभी तक का हम लोग का ब्लॉक्स हम लोग यूज किए, डेट इज तुम्हारा बॉडी, H1, तुम्हारा एंकर टैग, P के लिए स्टाइलिंग नहीं है, ठीक है, विल ऐड दैट। और div1 div2 के लिए हम लोग ने स्टाइलिंग ऐड कर दिया। क्या स्टाइलिंग ऐड किया विल सी, बट लेट्स सी द आउटपुट फर्स्ट, लाइक व्हाट हैपेंस आफ्टर वी ऐड स्टाइल। ये मैक छोटा हो जा भाई, हाँ ठीक है, सही है, एंड तू भी छोटा हो जा। Okay, so I'll just save it and okay, so कुछ डिफरेंस दिखा तुम लोग को क्या हुआ इसमें? Control Z, let's save it first. ये नहीं, Control Z, Control Z, Control Z, Control Z, Z. Okay, save. Okay, so this is the HTML without styling. This is the
HTML which स्टाइलिंग कहाँ गया भाई? ठीक है, फिर से कर लेते हैं. स्टाइल एंड टैब एंड इसमें सिर्फ बॉडी और इसका दे. विल ऐड सम मोर स्टाइलिंग कोई ना. और ये टैब 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 नहीं चाहिए. और स्लैश स्टाइल टैब. ओके, सो जस्ट क्लोज करना है अच्छे से स्टाइल को एंड सी कुछ ना कुछ हुआ है कि ये डिव में तुम्हारा एक बैकग्राउंड आ गया तुम्हारा, और कुछ नहीं. हाँ, सबका फॉन्ट चेंज हो गया एरियल एंड sans serif में. और तुम्हारा मार्जिन 20x मार्जिन, तुम्हारा बॉडी में मार्जिन आया है. नाउ आई विल एक्सप्लेन द बॉक्स मॉडल पहले, उससे पहले कि क्या क्या हुआ है इधर. कंट्रोल शिफ्ट आई कमांड ऑप्शन आई. हाँ, तो इन एवरी ब्लॉक, ठीक है, एवरी एलिमेंट ऑफ HTML, एवरी ब्लॉक ऑफ इन HTML तुम्हारा 3 चीजें रहता है. एक होता है तुम्हारा पैडिंग, एक होता है तुम्हारा बॉर्डर, एक होता है तुम्हारा मार्जिन. इसको और बड़ा नहीं कर सकते, ठीक है. तो सपोज दिस एंटायर थिंग, ठीक है, ये जो डिव है जिसमें लॉरम से ऑफिशिया तक है, इसमें एक पैडिंग बोल के चीज है. पैडिंग कौन सा होगा? ये जो लॉरम है, लॉरम मतलब टेक्स्ट कंटेंट एंड दी स्पेस बिटवीन द टेक्स्ट कंटेंट एंड दी बॉर्डर. ठीक है, ये जो बॉर्डर है बेसिकली, जो बॉर्डर कौन सा वाला होगा स्पेसिफिकली, लाइक दिस पार्ट बिटवीन द व्हाइट पार्ट एंड, मतलब जो जिधर लाइक ट्रांजिशन हो रहा है व्हाइट पार्ट और ग्रे पार्ट में, दैट इज द बॉर्डर. एंड मार्जिन इज द स्पेस तुम्हारा बिटवीन टू, क्या बोलते हैं, मार्जिन तुम्हारा आउटर स्पेस है बेसिकली. ये तुम्हारा एक ब्लॉक है, डीप ब्लॉक. लेट मी अगेन, ये किए अपन, ये किए, ठीक है, इसको बंद किए, बंद. तो हम लोग इसमें div और div 1 और div 2 में अपन क्या किए, पैडिंग को 10 पिक्सल कर दिए. तो अगर हम लोग इसको पहले 0 कर दे और सेव करें तो क्या होगा, देख रहे हो कि ये जो टेक्स्ट कंटेंट है ये लग गया, मतलब बॉर्डर में लग गया, राइट. एंड इफ यू वांटेड टू बी मोर स्पेस तो तुम बस इसको थोड़ा बढ़ा दो एंड सेव करो. सी, स्पेस बढ़ गया बॉर्डर एंड टेक्स्ट के बीच में. नाउ मार्जिन बॉटम, ओके, मार्जिन बॉटम, हाँ बॉटम. सो मार्जिन बॉटम यूजर है, मतलब ये जो डिव है उसका नीचे वाला बॉटम का मार्जिन. मार्जिन इज अगेन स्पेसिंग बिटवीन टू एलिमेंट्स. ओके, सो ये वाला जो स्पेसिंग है बिटवीन टू ऑफ द ब्लॉक्स, इफ यू वांट टू डिक्रीज दैट, तुम इसको कम कर दो, सेव करो, ठीक, कम हो गया. इसको और बढ़ाना है, बढ़ाओ, सेव करो, बढ़ गया. ठीक है, और लाइक ये भी स्पेस सेम ही होगा. सी, लाइक सेम डिवीजन, सेम तुम्हारा स्टाइलिंग हो रहा है. सो दैट्स व्हाई इट इज गेटिंग दिस मार्जिन. सो मार्जिन, पैडिंग एंड बॉर्डर, ये 3 चीजें समझ आए कि नहीं बोलो? नहीं तो बोलो नहीं समझ आए. बस मार्जिन, पैडिंग, बॉर्डर, ये 3 चीज जानना होता है. रनीत को समझ आया, रनीता को समझ आया, सॉरी, बाकी सबको सैंघोस को समझ आया. वाह वाह वाह, संचिता, ठीक है, पीपल आर गेटिंग इट. बस यही 3 चीज है, मार्जिन, पैडिंग, बॉर्डर. और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट मार्जिन, पैडिंग, बॉर्डर, और क्या कर सकते हैं, फॉन्ट फैमिली. हाँ, बॉडी का भी एक मार्जिन दिया हुआ है. बॉडी का मार्जिन, वेट, इफ वी डिक्रीज दिस, लेट्स सी व्हाट विल हैपन. पहले 0 करके सेव करते हैं. हाँ, तो सेम तुम्हारा बॉडी भी एक तुम्हारा एंटायर एक ब्लॉक है ना, तो उस ब्लॉक के लिए भी मार्जिन, पैडिंग, सभी एलिमेंट्स के लिए बेसिकली यू गेट क्या, मार्जिन, पैडिंग और बॉर्डर. ठीक, तो अगर हम लोग मार्जिन 0 कर दे तो देखो इट्स स्टिकिंग टू दिस साइड, राइट. तो हम लोग इसको अगर तुम्हारा 10 कर दे, सेव कर दे, इट विल जस्ट, क्या हुआ, हाँ, सेव, कंट्रोल Z, कंट्रोल सेव,
ओके, आई वाज रॉन्ग, इसमें रुको। मार्जिन जो है दिस इज बेसिकली अप्लाइंग फॉर ऑल द एलिमेंट्स इन द बॉडी। मार्जिन अभी के लिए 0 है, एंड उसके बाद div1 एंड div2 के लिए स्पेसिफिकली मार्जिन बॉटम इज 100। आई जस्ट डिक्रीज इट टू 0 10 सेफ। ओके, नाउ अभी के लिए जितना भी एलिमेंट्स है, इफ आई डोंट इवन, ये भी कमेंट कर देते हैं कमांड, ये हाँ सेफ। अभी के लिए तुम्हारा जितना भी एलिमेंट्स है एवरीबॉडी इज विथ 0 मार्जिन, ठीक है। और नाउ बॉडी में एंटायर थिंग में आई जस्ट ऐड 10 का मार्जिन एंड सेफ। नाउ सी एवरीबॉडी इज गेटिंग मार्जिन फ्रॉम द बॉडी। ओह है वही। नाउ अगेन इसको अनकमेंट करते हैं एंड सेफ, एंड ये भी आ गया, ये आया था सेफ। हाँ, कंट्रोल Z, कंट्रोल Y काम नहीं करता मैक में। ओके सेफ। ओके, सो मार्जिन बॉटम हो गया, मार्जिन बॉडी हो गया, पैडिंग 10 पिक्सल हो गया। लेट्स सी बॉर्डर का भी देख लेते हैं। बॉर्डर में तुम कलर दे सकते हो। ये क्या कलर है? लेट्स सी, कुछ तो कलर सजेस्ट किए हैं विच इज नॉट, अच्छा ये सेम कलर दिया है, मैं थोड़ा इसको ब्लैक कर देता हूँ। सिर्फ सी ये बॉर्डर जो अभी कलर हुआ है सॉलिड 1 पिक्सल। इफ यू वांट तो तुम उसको बड़ा भी कर सकते हो, सिर्फ थोड़ा मोटा कर सकते हो। ओके, सो दिस इज बॉर्डर। और क्या होता है? और भी स्टाइलिंग चीजें होते हैं। सपोज तुम सेम इफ यू वांट टू डू फॉर द इमेज। नाउ इमेज को अगर करना है, इमेज से पहले लेट्स लुक एट सिलेक्टर्स। व्हाट इज सिलेक्टर तुम्हारा? ओह नाइस, इंटरनेट है मेरा। ओके गुड। तो तुम्हारा वेट वेयर इज इंटरनेट। सो सिलेक्टर टाइप्स 3 टाइप के होते हैं। एक होता है टैग, ठीक है, एक होता है क्लास, एक होता है आईडी। तुम्हारा टैग के लिए तुम बस उस टैग को लिख दो कि बॉडी टैग के लिए तुम बस बॉडी लिख रहे हो, डिव टैग के लिए तुम डिव, मतलब नो हैशटैग और डॉट। उसके बाद अगर तुमको क्लास यूज करना है तो तुम मतलब व्हाट आर क्लास इक्वल, जैसे आईडी हम लोग दिए ना इस डिव को, div1 बोल के कुछ भी दे सकते हैं हम लोग की फर्स्ट डिव ऐसे बोल के आईडी दे सकते हैं, ठीक है। सेम वी कैन असाइन ए क्लास ऑल्सो टू एनी टाइप ऑफ एलिमेंट। तो क्लास इक्वल टू div1। तो हम लोग अगर इस क्लास को असाइन करना चाहते हैं तो वी यूज अ डॉट। फॉर एग्जाम्पल, वेट ये वाला मैं अभी पैक कर लेता हूँ। So I'll just make another div. Div 3 similar, हम क्या इसमें div खत्म किया है? टैब नेक्स्ट अगेन तुम्हारा div 4 टैब। ओके, सो अभी हम लोग ने div1 और div2 को कैसे करके तुम्हारा सिलेक्ट किया था यूजिंग अ आईडी सिलेक्टर। आईडी सिलेक्टर में क्या यूज होता है? हैशटैग, ठीक है। नाउ इफ यू वांट टू सिलेक्ट बाय क्लास, तो व्हाट आई विल डू, फर्स्टली असाइन ए क्लास। ये होगा तुम्हारा क्लास इक्वल टू सेकेंड क्लास, और सिमिलरली हम लोग div4 को भी एक क्लास दे देंगे इक्वल टू सेकेंड क्लास, ठीक। तो हम लोग अभी क्या कर सकते हैं कि डॉट क्लास स्पेलिंग सेकेंड, ओह आई डोंट थिंक स्पेसेस शुड बी देयर। नेमिंग कन्वेंशन होता है गाइस, को फॉलो करना है। क्लास 2 ये करते हैं, दिस इज अ बेटर कन्वेंशन जो एरर्स नहीं रहेंगे। टैब, हाँ, तो डॉट क्लास 2 और हम लोग अभी इसमें टैब कुछ एक स्टाइलिंग दे दी। तो हम लोग अभी क्या किए,
ये दोनों div एक क्लास में बिलोंग करते हैं. व्हाट इज द क्लास? क्लास 2. एंड हम लोग बोले क्लास 2 में जितना भी चीजें हैं उसको सभी को एक बैकग्राउंड कलर दे दो, एक अच्छा वाला, तो सेपरेट रेड कर दिए. और इसका बॉर्डर का भी कलर वियर्ड सा करते हैं, बट ठीक है, ये कर लिए. एंड पैडिंग बॉटम, ठीक है. नाउ व्हाट विल हैपन? कैन एनीबॉडी लाइक से कि क्या हो सकता है? प्रेडिक्ट करो मेरे को चेंजेस. What will happen? What are the changes that will happen after like the changes we made? मैं सेव करूंगा तो इधर क्या क्या आएगा? जो बोलेगा फिर से प्रीतम से चॉकलेट मिल जाएगा. I'll make sure वो दे देगा. हम लोग ने 2 divs ऐड किए तो क्या होगा? 2 divs ऐड होगा, राइट? ओके. एंड वो लोग का क्या क्या होगा? मतलब एनीथिंग, कोई कुछ बोलना चाहेगा? क्या क्या हो सकता है? गिव अ गुड प्रेडिक्शन. Okay. Hi again. Hi. So, like, what are the changes that you are expecting after like this? First change is तुम्हारा the addition of 2 more division with lorem ipsums, and उस जो नए आएंगे उसमें डायरेक्टली तुम्हारा स्टाइलिंग आ जाएगा. सी, एक ही बार में हम लोग क्लास सिलेक्ट करके एक ही बार में दोनों में अप्लाई कर दिए. सो दिस इज But एन एग्जाम्पल. like ये ओरिजिनल जो थे the first two, उनके लिए क्यों नहीं हुआ? बोलो क्यों नहीं हुआ? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सिलेक्टर्स, ठीक है. एक हुआ तुम्हारा बॉडी, अलग से एक हुआ तुम्हारा डायरेक्ट टैग, कि तुम उसमें जस्ट टैग बोल दो. उसके बाद आया तुम्हारा हैशटैग यूज करके जो हम लोग करते हैं वो है आईडी बेस्ड. तो हम लोग div1 एंड div2 में आईडी देके रखे div1 div2, राइट. एंड इसमें कौन सा स्टाइलिंग रखा है हम लोगों ने? div1 एंड div2 के लिए वी कीप दिस ग्रे स्टाइलिंग, राइट. उसके बाद हम लोग ने क्लास 2 को ये स्टाइलिंग दिया स्पेसिफिकली रेड एंड ऑल. तो क्लास 2 में अभी div1 एंड div2 आता है. रिताजा, ओ वो कॉपी नहीं है? नहीं. सो लाइक दिस, सो सपोज तुम div2 में भी सेम स्टाइलिंग अप्लाई करना चाहते हो तो यू जस्ट Oh, I thought like ये दोनों फिर से कॉपी करके किए हो आप. कॉपी ही है, बट लाइक आई डिडंट स्पेसिफाई द क्लास फॉर दिस टू. लाइक आई विल शो यू तुम क्या चाहते हो. सो सपोज आई जस्ट ऐड इट हियर, कंट्रोल वी एंड सेव. ओके. हाँ, सो ये क्यों नहीं हुआ बोलो? अभी तो क्लास में आ गया. अभी बोल सकते हो कोई? एनीबॉडी कैन. ये मतलब कॉन्सेप्ट नाउ अभी इंट्रोड्यूस होने वाला है, ठीक है. तो इफ एनीबॉडी कैन से कि ये क्यों नहीं है अभी इस div2 में, व्हाई आर वी नॉट गेटिंग द रेडिश कलर, तो बोल पाएगा? मतलब तुम बोल तो रहे थे. Because we have specifically mentioned by hashtag, that is through ID specification, we have made those styling different from the others too. करेक्ट, दैट्स इट. तो बेसिकली तुम्हारा जो एक स्पेसिफिसिटी बोल के कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है. व्हाट इज स्पेसिफिसिटी? कि तुम्हारा एक ऑर्डर रहता है जो HTML फॉलो करता है. अभी सपोज इफ यू check how many stylings does तुम्हारा div2 have. div2 has 2 stylings applied to it, right? One from the ID selector, एक तो ये हो गया, और एक हो गया तुम्हारा क्लास सिलेक्टर से, राइट. डॉट सिलेक्ट, डॉट यूज करके जो हुआ है. बट आवर ब्राउजर विल ऑलवेज प्रायोरिटाइज इन दिस ऑर्डर: इनलाइन, आईडी, क्लास, टैग, ठीक है. सबसे ज्यादा लो प्रायोरिटी होता है तुम्हारा स्पेसिफिसिटी. तुम्हारा सबसे ज्यादा प्रायोरिटी होता है तुम्हारा इनलाइन का. मतलब अगर
सपोज हम लोग इधर कुछ और स्टाइलिंग दे देना कि विड्थ एंड हाइट, तो वो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी होगा। उसके बाद आता है आईडी बेस्ड, बेसिकली div1 एंड div2 हैशटैग यूज करके जो हम लोग स्टाइलिंग दिए हैं उसको ज्यादा प्रायोरिटाइज किया जाएगा। सपोज देयर आर मल्टीपल स्टाइलिंग, राइट, हैशटैग विल बी like preferred, like or like hashtag will be rendered instead of the class या tag का जो भी स्टाइलिंग था, राइट। टैग का लोएस्ट लाइक ये तुम्हारा क्या बोलते हैं प्रायोरिटी रहता है या स्पेसिफिसिटी रहता है। डिड आई वाज एबल टू एक्सप्लेन इट, या मैं फिर से थोड़ा रीवर्ड करके समझाऊं? क्योंकि ये वाला कॉन्सेप्ट इज एक्चुअली नीडेड। इफ यू आर नॉट श्योर जस्ट गिव अ थम्स अप, आई विल जस्ट रीडू, थोड़ा मैं सिंपल बोल के ट्राई करूंगा। thumbs up if you want a re-explanation of specificity. No thumbs up. Okay, Ritaja answered. Okay, good. I'll just do it. So specificity is basically the order of the preference given by browser to a styling, right? Suppose एक ही element के लिए there are multiple styling, so browser will basically select the styling on the basis of specificity. So suppose तुम्हारा एक ही element का in a HTML file there are multiple styling, browser will follow this order: inline, id, class, tag. Inline मतलब this type of styling that is within the tag itself, right? Then उसके बाद आता है तुम्हारा id is using hashtag. उसके बाद आता है तुम्हारा class using तुम्हारा dot. उसके बाद आता है body. So suppose like by example ये हो गया, हम लोग एक और कर ले कि div बोल के एंड उसको हम लोग बोले कि बैकग्राउंड का कुछ दे दिया स्टाइलिंग बेसिकली। ओके, आई विल मेक इट ब्लू। अगेन ओके, आई एम बैक। तो एक और स्टाइलिंग आ गया है अभी, एंड लेट मी ऐड वन मोर div also. बट इस टाइम इसको कोई आइडिया ही नहीं देंगे टैग, सिर्फ। So now divs basically has got three types of styling. तुम्हारा एक हुआ तुम्हारा जितना भी divs है in our like entire body, they will get a, if they are not from a specific class or तुम्हारा ID, they will get a, ये जो भी कलर हम लोग ने दिया है एक पर्पलिश, इधर जाके देखेंगे, see this one, ठीक है। So this last div does not have any specific ID या class, हम लोग कुछ मेंशन किया इसमें नहीं ना, ये ब्लैंक है। ओके, उसके बाद आता है तुम्हारा divs with जो क्लास के अंदर है, ये सेकेंड आता है स्पेसिफिसिटी के ऑर्डर से। तो दिस हैव लाइक तुम्हारा क्लासेस मेंशन्ड, बट लाइक हम लोग उसके आईडी को कुछ नहीं दिए, ठीक है। तो आईडी का कोई स्टाइलिंग उसको असाइन नहीं है, क्लास वाइज स्टाइलिंग असाइन है। तो रेड, सो सी रेड इज बी असाइन टू दिस क्लास बेस्ड div। देन उसके बाद आता है हम लोग स्पेसिफिकली बोले आईडी दिए के जो ये वाले हुए। सो हम लोग अगर आईडी div2 और div3 div1 एंड div2 में हम लोग स्पेसिफिकली आईडी मेंशन करके स्टाइलिंग दिए, सो दैट इज द फर्स्ट प्रेफरेंस। सो div1 एंड div2 actually have three types of styling, but since specificity is there, इसलिए इट इज प्रायोरिटाइजिंग द आईडी वाला स्टाइलिंग मोर, ठीक है। अगर नहीं होता तो क्लास को करते, अगर नहीं होता तो टैग को करते। थोड़ा बहुत फिर से समझ आया और कंफ्यूज कर दिए? समझ आया तो थम्स अप। ओके, लाइक सी लाइक इफ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग एनीथिंग, मैं भी कोई टीचर नहीं हूँ, तो तुम लोग मस्त जाके गूगल वगैरह मार लेना, ठीक है। नेक्स्ट ओके, सो वी बॉक्स मॉडल आई ऑलरेडी टोल्ड, कंटेंट पैडिंग मॉडल ये वाला हो गया।
ये भी हो गया। रूल एंड एनाटॉमी, सिलेक्टर। हाँ, तो बेसिकली एक ये वाला चीज स्किप हो गया, रूल एनाटॉमी, कि हाउ डू यू अप्लाई। कि एक होता है सिलेक्टर, जो हम लोग बोल रहे कि कितने टाइप ऑफ सिलेक्टर होते हैं, कोई बोल सकता है? ये अभी रिपीट हो रहा है। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सिलेक्टर्स आर देयर, व्हाट आर दे? कैन एनीबॉडी आंसर फॉर द सेक ऑफ माय पीस? रीता आजा, समझ आया तो प्लीज बोल दो। हमजा। लाइक सिलेक्टर्स, लाइक तुम HTML के बॉडी के अंदर कितने कितने एलिमेंट्स लिए हो, कि पैराग्राफ लिए हो, लिस्ट लिए हो? those are tags. Selectors वो basically। मैं एक साथ बोल रही हूँ, लाइक अच्छा, फॉर दोज एक एक टैग्स के लिए तुम स्टाइल के अंदर जाओगे, उसका लाइक लिंक बोलोगे। लाइक H2 टैग के लिए H2 सिलेक्टर एक कर्ली ब्रेस में होगा, तो लाइक फॉर एवरीथिंग यू वांट टू लाइक स्टाइल इन फॉर द H2 टैग। अगर H2 टैग में जो भी लिखा है वो लाल रंग का करना चाहते हो, वो H2 सिलेक्टर के अंदर करोगे। It's basically about mentioning the thing. So there are 5 ways to do, like element, class, ID, universal, and group. selected types, right? कौन क्या बोला, रुको। लाइक, और वो सही बोला है। सो सिलेक्टर्स है बेसिकली वही कि तुम एलिमेंट कैसे सिलेक्ट करोगे इन स्टाइलिंग। सिलेक्ट, राइट? इट्स इन द वर्ड इटसेल्फ। उसके बाद तुम्हारा आता है प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टीज भी बहुत सारे होते हैं। एक ही एलिमेंट का तुम लाइक बेसिक सा, अगेन तुम्हारा ये जो बोले अपन, पैडिंग, मार्जिन, बॉर्डर, कंटेंट। कंटेंट के लिए वही फॉन्ट वगैरह होता है। उसके बाद बैकग्राउंड कलर्स रहते हैं। इफ यू वांट टू नो मोर, जस्ट गो टू W3 स्कूल, गुड प्लेस, ठीक है। उसके बाद उसका वैल्यू, नो एवरीथिंग हैज अ स्पेसिफिक वैल्यू। लाइक कलर अगर होता है तो भी बेसिकली यू कैन आल्सो स्पेसिफाई इन RGB, बट दिस इज तुम्हारा क्या बोलते हैं इसको, हेक्स कोड। हेक्स कोड होता है बेसिकली 16 डिजिट, लाइक जो हेक्स में 16 है, 16। सो 16 डिजिट्स, 16 डिजिट्स के जो अपन क्या बोलते हैं नंबर सिस्टम फॉलो करते हैं, उसके हिसाब से ये कोड्स बनते हैं। सो RGB के हिसाब से भी देख सकते हो। तो फर्स्ट कोड इज फॉर लाइक रेड, हाउ मच रेड यू वांट। सेकंड कोड इज फॉर हाउ मच ग्रीन यू वांट। थर्ड कोड इज फॉर हाउ मच ब्लू यू वांट। सो दिस इज बेसिकली सेइंग कि हम लोग को एफ का वैल्यू क्या होगा, कुछ तो होगा, देखना पड़ेगा। बट जो भी है, ये बेसिकली दिस इज कन्वर्टिंग टू तुम्हारा व्हाइटिश। बट अगर पूरा व्हाइट जाना है ना, तो एफ। तो दिस इज फुल तुम्हारा F is the I guess 16th digit in a hexadecimal system, ठीक है। तो ऐसे ही करके हेक्स कोड बनते हैं। और अगर सब जीरोस हो गए तो तुम्हारा जीरो से लेके F तक जाता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ABCDEF, ठीक है। तुम्हारा अगर सब जीरो है तो काला आता है, एंड एवरी लाइक कलर विल बी इन बिटवीन दैट ओनली, ठीक है। और उसके बाद वही पिक्सेल्स यूज होते हैं फॉर पैडिंग। तो देयर आर मल्टीपल फॉर्मेट्स ऑफ स्पेसिफाइंग द वैल्यू, बट एट द एंड बॉटम लाइन एनाटॉमी क्या होता है, तुम्हारा मेन सिलेक्टर, उसके बाद तुम्हारा प्रॉपर्टी, उसके बाद तुम्हारा वैल्यू, ठीक है। यही है। नेक्स्ट स्पेसिफिसिटी इज क्लियर, CSS रूल एनाटॉमी डन, सिलेक्टर्स डन। और हाँ, एक सूडो बोल के भी रहता है। सूडो इज बेसिकली तुम सपोज होवर जस्ट डू डिफ का इसमें होवर, तो ये हो गया कंट्रोल शिफ्ट कमांड शिफ्ट डिफ होवर। अभी ये क्या होता है कि तुम जब होवर करोगे स्पेसिफिकली तो कुछ अलग स्टाइलिंग आ जाना चाहिए, ऐसा, ठीक है। ये स्पेशल इफेक्ट है, दिस इज कमिंग बिकॉज ऑफ होवर। तो सूडो सिलेक्टर्स वही है। नेक्स्ट अप तुम्हारा और कुछ बाकी है स्पेसिफिक, और
Okay, I guess like overall that was a brief intro to HTML and CSS. Of course, there will be doubts, there will be questions, and at the end you will be vibe coding. But always keep in mind the concepts that were introduced. उसके बाद let's like look into something like हम लोग क्या क्या यूज कर रहे थे, right? Tools. अपन जब ये like जब भी तुम ब्राउजर यूज करते हो, ब्राउजर ऑलरेडी हैज डेव टूल्स इंस्टॉल इन इट, तो तुम वो सब यूज करोगे. इन विंडोज इट्स कंट्रोल शिफ्ट आई फॉर इंस्पेक्ट, या तुम लाइक राइट क्लिक मार के इंस्पेक्ट भी कर सकते हो. ठीक है, सो दिस इज द एलिमेंट ब्राउजर. तुम इसमें स्पेसिफिक एलिमेंट्स देख सकते हो, उसका स्टाइलिंग देख सकते हो, तुम उसका स्टाइलिंग टर्न ऑफ कर सकते हो. ठीक है, उसके बाद आता है अपना कंसोल. इधर यू कैन बेसिकली क्या बोलते हैं, तुम कुछ भी जावास्क्रिप्ट का कोड लिख सकते हो. जावास्क्रिप्ट सीखे नहीं हो, फॉर एग्जांपल अपन एक अलर्ट दे सकते हैं. Hi, this ओके एंटर. ओके 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 ओके, ये होता है तुम्हारा गलत चीज. ओके, सो जावास्क्रिप्ट का कोड एग्जीक्यूट हो गया, अलर्ट आ गया, राइट? तो कंसोल में ये कर सकते हो. सोर्सेज इज बेसिकली नॉट नीडेड, बट दिस इज फ्रॉम वेयर द डेटा इज बीइंग फेच, या तुम्हारा पोर्ट डिटेल्स तुमको मिल जाता है. नेटवर्क तुम जब भी एक like, अभी नहीं है, तुम जब चीजें फेच करोगे तो यू विल सी द लोड एंड ऑल, तुम्हारा नेटवर्क में आ जाएगा. सपोज सी इधर मैंने जब रीलोड किया तो कहाँ से गया, रिक्वेस्ट यूआरएल कहाँ गया था. ये दिस विल बी हेल्पफुल व्हेन यू आर लाइक वर्किंग विद बैकएंड एंड समथिंग, और तुम अपने कुछ दूसरा एपीआई यूज कर वो सब. जब लाइक दिस विल बी इंट्रोड्यूस फर्दर डाउन दी लाइक कोर्स और बूट कैम्प जो भी चल रहा है. ठीक है, तो लाइक फॉर एग्जांपल जब हम लोग रीलोड किए तो बेसिकली index.html सर्व हुआ है. क्या मेथड था, गेट मेथड से ऑल विल एक्सप्लेन. उसके बाद परफॉर्मेंस इज देयर, मेमोरी एप्लीकेशन रेट, स्नैपशॉट, वेयर इज द थिंग आई वांट टू शो, रिकॉर्डर. हाँ, तो आई वांट टू शो दिस. एक मस्त चीज है कि तुम ये करके, दिस इज बेसिकली यूज फॉर टेस्टिंग एंड ऑल. तो हम लोग ये करके रिकॉर्डिंग किए, एंड इफ आई क्लिक एंड ये हुआ एक, मतलब मैंने आई परफॉर्म सम सेट्स ऑफ लाइक एक्शंस एंड ऑल. ठीक है, एंड रिकॉर्डिंग. नाउ इफ आई जस्ट रिप्ले इट, ये ऑटोमेटिक वही चीजें फिर से कर लेगा. बट ये बहुत फास्ट है, इट वोंट टेक एज मच टाइम एज यू डिड व्हाइल रिकॉर्डिंग. दिस इज यूज्ड फॉर बेसिकली जब तुम लाइक कुछ वेरी कॉम्प्लेक्स बना रहे हो, राइट, एंड रिपीटेटिव हो रहा है कि तुम स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3, फॉर एग्जांपल ए लॉगिन पेज, लाइक वेरी लॉन्ग लॉगिन पेज, यू विल हैव तुम्हारा क्या क्या नेम, क्लास, रोल नंबर, जो भी रहता है तुम्हारा, ये आधार कार्ड नंबर, ये सब रहता है. तो फिलिंग दिस अप मैनुअली एवरी टाइम मे बी ए हैसल, राइट? तो जस्ट यू रिकॉर्ड इट एंड प्ले, एंड दैट्स इट. जब भी तुमको टेस्ट करना है प्ले कर दो, एंड रिकॉर्डिंग्स आर सेव्ड, सो यू कैन जस्ट रीडू. And that brings us to an end of the first session. Hopefully it was insightful. The thing I want you guys to do, even with vibe coding, it's okay, is like last time also we did that, कि हम लोग सभी को बोलते हैं अपना एक पोर्टफोलियो बनाओ. हम लोग वाइब कोड करवा के किए थे सभी से कि वी डोंट एक्सपेक्ट यू टू लाइक जस्ट जंप इनटू HTML फ्रॉम द गेट गो, बट इफ पॉसिबल डू जंप इनटू इट and make a good portfolio out of it, right? एक random सा portfolio बनाओ. Example, I don't know if I still have those. अच्छा, this device doesn't have it, but it was. I'll just show you a demo. Wait, वही better है. मैं ChatGPT खोल सकता हूँ, तो मेरा ही तो है. देख लेते हैं. ChatGPT. Just give me 1 minute. मैं अपना थोड़ा सेफ्टी चेक कर लेता हूँ. Okay, I guess it's safe.
share entire screen. So like two things you can do after this session. Firstly, go to W3 Schools or any website you like and learn more about HTML and CSS. I'll probably share, like, host this किधर गया अपना पेज जो भी था अपना, जो अपन जो यूज कर रहे थे रेफरेंस के लिए, जो द डॉक दैट आई वाज शेयरिंग, आई जस्ट शेयर होस्ट दैट एंड शेयर द लिंक. You will get access to that, and try to make your own portfolio page using only HTML and CSS. JavaScript नहीं करना, React नहीं करना, ठीक है. HTML and CSS देखो, थोड़ा एडिट करो, थोड़ा सीखो. नहीं करना है, एटलीस्ट वाइब कोड इट, ठीक है. लाइक जस्ट मेक अ रैंडम portfolio of me with the info you have. Make it funny. Give single page HTML plus CSS. ठीक है, बस ये कर दो. If you have a, like, if you are a constant user of ChatGPT already has your info and all, तो मस्त ऐसा बना देगा. And I want just तुम लोग इसका I don't know, screen recording share कर दो, because we have not taught hosting and all. Screen recording share कर दो, screenshot share कर दो, that will be enough. I guess everybody is in a group, right? सभी ग्रुप में हो PDR का. You are in a group. If you are in a group, वही उधर ही बस like share a screenshot and like just वही दिखाओ सभी को कि कुछ तो किए हो, right? Yeah, I have one page. Can I share? Sure. How to render, ये बस एक चीज दिखा लेता हूँ मैं. देखो, Control A, Control V, save and there you go. Brief Babu. Okay. This is very formal. तुम लोग इसको funny कर सकते हो, कुछ change कर सकते हो. Since I don't like this, I will just ask to change this and all. So I hope everybody can make this and just share it. And if you want to, एक और चीज कर ही सकते हैं. If you do get Visual Studio's code, एक और step like this, if you remember कर लेना, नहीं कर पाओ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है. I don't know terminal का command इधर भी. So if you open Visual Studio's terminal ना, और इधर ports देखो, forward a port, I don't know, 500 था, I guess. Yes. Hello. Okay, ना ये नहीं, मत करो. Port forwarding I was thinking हो जाएगा, but GitHub and all चाहिए. I don't know इस सबके पास है कि नहीं, complex हो जाएगा. So your tasks, two things. Go and learn more about HTML CSS just to keep your concepts clear. Second task, make a random as portfolio. ठीक है, तुम कुछ भी करो, HTML CSS लगा के बस. Use ChatGPT, doesn't matter, but make it something good जो तुमको सीखने को मिला, ऐसा कुछ. And WhatsApp में screenshot भेज दो. Okay, now moving on to Ritaja, दिखा दो. And if you have any questions, I am open for discussion. We have around 5 minutes more. ठीक है, उसके बाद टाटा बाय बाय. And we'll move on to more serious sessions from tomorrow onwards. अभी के लिए बस intro था. Stop sharing and ये explain, pitch करो रिताजा, तुम तो second year की हो. What is this? This is a web page I designed for a cafe/bakery. मतलब दोनों ही है. तो like बहुत ही simple सा डिजाइन किया. Nice. Yes, nice. And JavaScript लगाया है इसमें? नहीं. Okay, good enough. Nice. और like वही और चीजें सीखो, मे बी हेडर वगैरह कैसे और सही कर सकते हो, एलिमेंट्स को कैसे तुम बोर्ड मतलब add some border to the nef elements and all, और like और भी कर सकते हो. Like it's good that you are doing it on your own. If you are doing it on your own, vibe code करे तो और सही करो. But हाँ, that's it. Any questions from anybody? Any feedbacks? Any questions? और कुछ PDR के बारे में कुछ भी? If not, we'll just end the session. Hopefully सभी को कुछ सीखने को मिला. And ये PDR.
ओके तो क्या स्क्रीनशॉट वगैरह होता है क्या वर्षा? मुझे पता नहीं, तुम लोग बोलो। नहीं ओके होता है। लास्ट ओके में देन कराएंगे सेशन। ओके ओके फिर जस्ट अ थम्स अप एंड बाय बाय गाइस फिर। अच्छा, so before you all leave, I just had a question to ask you everyone that सब लोग ग्रुप्स में हैं मेंटर्स एंड पीओसी वाले? एक बार हैंड रेज कर दो। हेलो, सब लोग हैं ग्रुप्स में? ऑलराइट, ओके, सो जो भी नहीं होगा ना, तो वो एक बार प्रोजेक्ट डेव रश वाले ग्रुप में अपना नाम टेक्स्ट कर दे. Someone from Skepsis will contact you, and that's all. Thank you so much for joining. Hope to see you in next session. Thank you so much.